Assalamu alaikum to all of you. Continuing with our lecture series. In previous lecture we completed D block elements, preparation properties of potassium dichromate and potassium permanganate. Today we will take the last portion of this chapter, that's F block elements. इस पोर्शन में हमें खाली डिस्कस करना है F block elements in respect to, in reference to lanthanide. तो सबसे पहले हम F block elements को डिफाइन करेंगे। जैसे कि हमने D block को डिफाइन किया था, elements in which last electron is added to the D subshell of penultimate shell। लेकिन F block elements में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ऐड होगा, that will be added to the F subshell of antipenultimate। So F block elements को हम डिफाइन करेंगे, those elements in which last electron is added to the F subshell of antipenultimate। Antipenultimate means last but third or n minus 2f। So I will write the definition. F block elements, those elements in which a last electron is added to the F subshell of antipenultimate shell antipenultimate that is n minus 2f। This is n minus 2f, ठीक है? This is antipenultimate। As far as F block elements are considered, F block elements में दो series of elements आपको मिलेगी that at the base of periodic table। First series lanthanoids and second series will be actinoids, ठीक है? So दो series आपको मिलेंगे। F block elements are classified into two series। First series called as lanthanoids। Lanthanoids contain 14 elements and elements start from cerium to lutetium। Cerium atomic number 58 and lutetium atomic number 71। Lanthanoids are also called as 4f series elements। क्यों 4f series कहेंगे? क्योंकि इन elements में electrons fill हो गए in 4f orbitals, ठीक है? तो इनकी जो general electronic configuration lanthanoids की बनेगी, that will be xenon atomic number 54, ठीक है? उसके बाद आएगा 4f, then we have 5d, then we have 6s, ठीक है? 4f में क्योंकि एलिमेंट्स, इन एलिमेंट्स में 4f फिल होगा, इसमें मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 होगा और मैक्सिमम 14 होगा, ठीक है? 5d में मिनिमम 0 मैक्सिमम 1, ठीक है? क्योंकि लैंथेनम के बाद ही स्टार्ट होते हैं। लैंथेनम में एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो एक इलेक्ट्रॉन कभी कभी F में जाएगा क्योंकि इन दो की जो एनर्जी लेवल्स है वो बहुत क्लोज है। तो यहाँ पे FD ट्रांजिशंस होते हैं। इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रॉम D to F और F to D very easily in accordance with the stability of electronic configuration, and 6s is always filled, 6s2, ठीक है? तो ये बनेगी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनाइड्स। सिंस इसमें 4f सबशेल फिल होता है या 4f ऑर्बिटल्स फिल होते हैं, इस सीरीज को हम कह सकते हैं 4f सीरीज। सो पहला एलिमेंट सीरियम और लास्ट एलिमेंट इसका आ जाएगा ल्यूटीशियम एटॉमिक नंबर 71, ठीक है? दूसरी सीरीज जो इसमें आती है दैट इज कॉल्ड एज एक्टिनॉइड्स। Why they are called as actinoids? उसके पीछे रीजन है, because these elements follow actinium, ठीक है? तो ये एलिमेंट्स कहां से स्टार्ट होते हैं? They start from first element, that is thorium, and they will end at a lawrencium या anil trium, sorry, UNT,
इसका एटॉमिक नंबर 90, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 103, ठीक है, दैट्स अनिल ट्रायल। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी दैट विल बी रेडॉन, atomic number 86, then we will have 5f, then we have 6d, then we have 7s, completely filled। f fill होगा from 1 to 14 और d में या तो 0 या तो 1 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सिंस एक्टिनॉइड्स में 5f फिल हो रहा है तो इसको हम कह सकते हैं 5f सीरीज। We can also call this as 5f series. So these are the two series of elements, each containing 14 elements, called as lanthanoids and actinoids. Lanthanides 4f series, actinoids 5f series. यहाँ पे 4f fill होगा, यहाँ पे 5f fill होगा, ठीक है। इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, ठीक है। इन टोटल अगर मैं f ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। दोनों में अंदर से नोबल गैस है, ठीक है। अब मुझे बताइए ये जो f फिल होता है ये किस शेल का होगा? ये है वैलेंस शेल, ये है सेकंड लास्ट पेनल्टिमेट और ये है थर्ड लास्ट, इसको आप एंड पेनल्टिमेट कहते हो, दैट इज n-2f, ठीक है। तो यहां होगा n-2f, ठीक है। d कहां पे होगा? दैट विल बी n-1d और लास्ट पे होगा ns, ठीक है। बताए n-2f में कहां से कहां? इट्स 1 to 14, n-1d में 0 to 1 और ns में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। सो दिस इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ f ब्लॉक एलिमेंट्स। लैंथेनॉइड्स की अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिख दी और एक्टिनॉइड्स की अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिख दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। As far as lanthanoids और actinoids are considered, या f block elements are considered, इसमें कितने ग्रुप्स हैं? That's very important. We know that modern periodic table contains in total 18 groups. First, second group belong to S block, ठीक है, first and second S block, ठीक। Then 3 to 12 जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं D block, 13 to 18 P block, तो सारे के सारे ग्रुप्स आ गए। Then where does F block and P block? So where does these F block elements belong? F block elements belong to that group जिस ग्रुप में खुद lanthanum और actinium होता है, ठीक है। They follow lanthanum and they follow actinium. So F block elements यानी lanthanides और actinoids का वही ग्रुप होगा जो ग्रुप होता है lanthanum और actinium का, और वो ग्रुप है ग्रुप नंबर 3। Remember this thing. Both lanthanoids as well as actinoids belong to same group, and that group is group number 3, and this is the group in which we have lanthanum and actinium. इस वजह से इनको ग्रुप नंबर 3 में इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। सो ग्रुप नंबर इज कांस्टेंट। पीरियड नंबर के लिए एक यूनिवर्सल फॉर्मूला मैंने बताई थी डी ब्लॉक में। वैल्यू ऑफ n यानी आउटर मोस्ट शेल कौन सी है? लैंथेनॉइड्स के लिए 6 और एक्टिनॉइड्स के लिए 7, ठीक है। सो लैंथेनॉइड्स का पीरियड नंबर होगा 6, यानी लैंथेनॉइड्स बिलोंग टू 6th पीरियड एंड एक्टिनॉइड्स बिलोंग टू 7th पीरियड। 6th पीरियड में है और ये 7th पीरियड में, ठीक है। So this was general introduction about F block elements. आगे बढ़ते हैं। F block elements की जनरल इंट्रोडक्शन के बाद we'll directly move to general study of lanthanoids. जनरल स्टडी ऑफ lanthanoids स्टार्ट करेंगे हम with electronic configuration of lanthanoids, ठीक है। तो सबसे पहले जनरल स्टडी ऑफ लैंथेनॉइड्स में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनॉइड्स। जनरल स्टडी ऑफ लैंथेनॉइड्स, जनरल स्टडी ऑफ लैंथेनॉइड्स, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। लैंथेनॉइड्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ज़ीनॉन 4f 5d 6s, 4f 1 to 14, 5d 0 to 1 and 6s2,
ठीक है, तो सबसे पहले एलिमेंट्स का नाम लिखते हैं। Lanthanoids start from first element, that is cerium, praseodymium, neodymium, promethium, samarium, europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium and lutetium. These are the elements of lanthanoids. 14 elements. You can count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. I will again name the elements. Cerium, praseodymium, neodymium, promethium, samarium, europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium and lutetium. ठीक है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी क्या होगी? सो आई एम राइटिंग हियर 4f, नोबल गैस पता है, पहले ज़ीनॉन है, 4f 5d6s. ठीक है, एज पर सीरियम इज कंसिडर्ड, इट्स 1 देयर, इट्स 1 देयर, इट्स 2 देयर. ठीक है, जीनॉन एटॉमिक नंबर इसका 58 है, जीनॉन का 54 + 4 दैट्स 58 और इसका एटॉमिक नंबर 71 होगा. ठीक है, चलिए, इससे पहले मैंने आपसे कहा कि 4f और 5d की एनर्जी लेवल्स बहुत क्लोज है, इस वजह से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हो सकती है फ्रॉम 4f टू 5d और 5d टू 4f. इसके बाद जो प्रेसियोडाइमियम आता है, इसमें d इलेक्ट्रॉन एंटर होगा इनटू 4f, तो d ऑर्बिटल कंप्लीटली वैकेंट बनेगा, सो इट इज 202. इसके बाद ये स्मूथली जाएगा अप टू 7, देन 302, then 402. Are you getting me? 402, it does not mean 402, it means 4f4, 5d0, 6s2. ठीक है, then 502, ये बराबर 7 तक स्मूथली जाएगा, then it is 602, ठीक है, तो इसमें 1, इसमें बनेगा, सॉरी इट्स नॉट देयर 2, सॉरी इट्स नॉट देयर 2, तो 1 के बाद ये इलेक्ट्रॉन जब इधर जाएगा ये बनेगा 3, ये बनेगा 02, सॉरी. ठीक है, 3 के बाद 402, देन 502, देन 602, देन यहां पे हमारा होगा 702. ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बराबर स्मूथली जाएगा 7 तक. मैं फिर से दिखाता हूं, सीरियम में 4f1, 5d1 एंड 6s2. उसके बाद क्या होगा, क्योंकि इनकी एनर्जी लेवल्स क्लोज है, सीरियम प्रेसियोडाइमियम में इतना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है कि 4f की एनर्जी d से थोड़ी सी कम बनती है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव करेगा, इस वजह से 1 के बाद 2 तो आना चाहिए था, इट इज 3, देन 302 अप टू 7 स्मूथली जाएगा. ठीक है, नाउ हियर वी एक्सपेक्ट टू बी 802, बट इट्स नॉट 802, it is 712. ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है और ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछी भी जाती है इसकी कॉन्फ़िगरेशन. व्हाई नॉट 802, व्हाई 712? यू नो दैट f में टोटल इलेक्ट्रॉन्स 14 आते हैं, तो f7 हाफ फिल्ड होगा, हाफ फिल्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो इस वजह से क्या होगा, ये रहना पसंद करेगा हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन में, क्योंकि हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, इस वजह से इट टेंड्स टू रिमेन इन f7 कॉन्फ़िगरेशन. तो इस वजह से यहां भी 712. ठीक है, तो अब क्या आना चाहे 8. अगेन वी नो दैट कि 4f की एनर्जी अब डिक्रीज हो गई है, तो ये इलेक्ट्रॉन फिर से मूव करेगा f में, तो अब 8 नहीं आएगा, इट विल बी 902. अब फिर से स्मूथली अप टू 14, 1002, 1102. ठीक है, देन 1202, 1302, देन 1402. ठीक है, अब जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा वो जाएगा इनटू d, सो इट विल बी 14, 1 and 2. ठीक है, यहां पे भी 14 की स्टेबिलिटी आ रही है और यहां पे 7 की स्टेबिलिटी आ रही है. दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनॉइड्स.
ठीक। और इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अक्सर गैडोलिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी जाती है, ठीक है। गैडोलिनियम का एटॉमिक नंबर आप चेक करोगे 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, एटॉमिक नंबर 64, कॉन्फ़िगरेशन 4f7, 5d1, 6s2। ये होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनॉइड्स, ठीक है। चलिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही लिखी है, वी आर गोइंग टू डिस्कस देयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ लैंथेनॉइड्स, ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ लैंथेनॉइड्स, ठीक है। चलिए, फर्स्ट पॉइंट, एज फार एज लैंथेनॉइड्स आर कंसिडर्ड, द लैंथेनॉइड्स की जो केमिस्ट्री है उसको हम कहते हैं +3 केमिस्ट्री। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ +3 केमिस्ट्री? इसका मतलब ये है कि लैंथेनॉइड्स के सारे कंपाउंड्स, इफ नॉट ऑल, मेजॉरिटी ऑफ द कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका मतलब ये हुआ कि मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड्स इज +3, ठीक है। सो पॉइंट नंबर 1, +3 is the most stable and most common, not only common but most stable, most common oxidation state of lanthanide +3। तो लैंथेनॉइड्स का जो सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट्स +3। Ln represents lanthanide, so +3 is the most common and most stable oxidation state, ठीक है। In addition to +3, some elements can show +2 as well as +4। इनके ज्यादा वेरिएबल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स नहीं है। रीजन क्या है? 4f ऑर्बिटल्स आर डीपली पेनिट्रेटेड, इन पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, तो इनके बॉन्डिंग में आने के चांसेस कम बनते हैं, इस वजह से इनके ज्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स नहीं होते हैं। +3 के अलावा कुछ एलिमेंट्स +2 भी दिखाते हैं, +4 भी दिखाते हैं। वो कौन से एलिमेंट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, और क्यों दिखाते हैं वो भी हमें डिस्कस करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं +4 की बात कर लेता हूं। +4 में सबसे पहले आएगा सीरियम, ठीक है, और दूसरा जो +4 में आता है दैट्स टर्बियम, ठीक है। टर्बियम और सीरियम क्यों +4 दिखाते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गो टू द सीरियम +4 एंड टर्बियम +4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज देयर। जरा सीरियम से आप ये चारों इलेक्ट्रॉन्स निकाल दें। जब आप सीरियम से चारों इलेक्ट्रॉन्स निकाल दोगे तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी दैट विल बी ज़ीनॉन कॉन्फ़िगरेशन। तो सीरियम +4 की जो कॉन्फ़िगरेशन है ज़ीनॉन कॉन्फ़िगरेशन है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, हाईली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इस वजह से सीरियम दिखाता है +4, ठीक है। इन एडिशन टू +3 टर्बियम, लेट मी गो टू द टर्बियम। टर्बियम इज देयर, ये है टर्बियम, ठीक है। इसका +4 क्यों है और कैसे दिखाता है? टर्बियम के 4 इलेक्ट्रॉन्स आप निकाल दे, 2 यहां से निकलेंगे, 2 यहां से निकलेंगे, ठीक है। 2 यहां से 2 यहां से, ये बनेगा 4f7 कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के पीछे जो रीजन है, टर्बियम +4 हैज 4f7 कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फेल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल है, इस वजह से ये +3 के अलावा वो +4 भी दिखाते हैं, ठीक है। सो सीरियम एंड टर्बियम ऑल्सो शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इन एडिशन टू +3, ठीक है। लेकिन पहले ही हम लिख चुके हैं कि मोस्ट स्टेबल एंड मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ही है। अब अगर +3 ही है तो इसका मतलब इन दोनों लैंथेनॉइड्स में टेंडेंसी होगी कन्वर्जन ऑफ +4 टू +3, ठीक है। चाहे सीरियम +4 हो या टर्बियम +4 हो, क्योंकि दोनों का जो ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट्स +3। इस वजह से इनको टेंडेंसी होगी टू मूव फ्रॉम +4 टू +3।
ठीक है, ये वाली प्रोसेस रिडक्शन है। अगर इनको खुद रिडक्शन होती है तो ये बिहेव करेंगे एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। इट मींस बोथ सीरियम +4 एंड टर्बियम +4 हैव द टेंडेंसी टू बिहेव एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो ये दोनों के दोनों बिहेव करेंगे एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। Cerium +4 and terbium +4 have the tendency to behave as strong oxidizing agents. Reason is conversion of +4 to +3. ठीक है, चलिए अब हम जाएंगे +2 oxidation state पे। Again, I will name two elements that have the tendency to show +2 oxidation state in addition to +3. उनमें सबसे पहला एलिमेंट आएगा यूरोपियम। ठीक है, जरा यूरोपियम की कॉन्फ़िगरेशन देख ले, 4f7, ठीक है, 5d06s2, 2 इलेक्ट्रॉन्स आप निकाल दे। अगर आप यूरोपियम +2 लोगे तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 4f7, ठीक है। और दूसरा एलिमेंट हमारा यटर्बियम होगा। यटर्बियम इज YB+2। जरा यटर्बियम से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दे आप, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, कॉन्फ़िगरेशन क्या बनने वाली है, फिर से 4f7। दोनों की कॉन्फ़िगरेशन 4f7 इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 4f14, इसकी 4f7 हाफ फिल्ड, इसकी 4f14 कंप्लीटली फिल्ड। दोनों के दोनों कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। इस वजह से +3 के अलावा ये +2 भी दिखाते हैं, एंड हेंस वी कैन से स्टेबिलिटी ऑफ +2 और +2 इन यूरोपियम एंड यटर्बियम अराइजेस बिकॉज ऑफ हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, तो दैट्स व्हाई कि ये दो एलिमेंट्स +2 भी दिखाते हैं। बट रिमेंबर अगेन इनका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ही होगा। इस वजह से इन दोनों लैंथेनॉइड्स में टेंडेंसी होगी टू मूव फ्रॉम लैंथेनॉइड +2 टू लैंथेनॉइड +3। दे हैव द टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम +2 टू +3। +2 टू +3 मींस ऑक्सीडेशन। जिनको खुद ऑक्सीडेशन होगी वो बिहेव करेंगे एज रिड्यूसिंग एजेंट्स। इसका मतलब ये है कि ये दोनों के दोनों यूरोपियम +2 एंड यटर्बियम +2, जिन कंपाउंड्स में यूरोपियम और यटर्बियम का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, दे हैव द टेंडेंसी टू बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है, दिस इज पॉइंट नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। देयर आर 2 एलिमेंट्स लैंथेनॉइड्स में जिनमें +3 की स्टेबिलिटी नॉर्मल स्टेबिलिटी से ज्यादा है, नॉर्मल ट्रेंड से ज्यादा है। उनमें से पहले आएगा गैडोलिनियम और दूसरा आएगा ल्यूटीशियम। ठीक है, लेट मी राइट Gd+3 एंड ल्यूटीशियम +3। +3 तो सभी का ज्यादा स्टेबल है, लेकिन इन दो में +3 की स्टेबिलिटी बाकी एलिमेंट्स के कंपैरिजन में ज्यादा है, या ट्रेंड के हिसाब से इनमें +3 की स्टेबिलिटी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, लेट मी एक्सप्लेन। गैडोलिनियम 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दे तो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 4f7। ल्यूटीशियम 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दे, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दे तो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 4f14। ठीक है, इस वजह से इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, हेयर f7 कॉन्फ़िगरेशन, हेयर f14 कॉन्फ़िगरेशन, दोनों की कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड कंप्लीटली फिर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। इस वजह से इनके ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी नॉर्मल स्टेबिलिटी से ज्यादा होगी। दैट्स हाउ वी कैन से कि इनमें +3 की स्टेबिलिटी नॉर्मल स्टेबिलिटी से ज्यादा होगी। ठीक है, सो दिस इज ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ लैंथेनॉइड्स। 4 पॉइंट्स मैंने लिए। फर्स्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट्स में +3 is the most stable and most common oxidation state of lanthanoids. Ln +3 most stable as well as most common. In addition to +3, there are some elements which show +4 as well as +2. +4 में हमने एक तो लिया सीरियम और दूसरा हमने लिया टर्बियम। +4 क्यों दिखाते हैं? बिकॉज ऑफ सीरियम जीनॉन कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पे F7 आएगा। ठीक है, इन एडिशन टू दैट ये वाले एलिमेंट्स +4 से +3 में क्विकली जाएंगे बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ +3 एंड हेंस विल बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। 2 एलिमेंट्स
एक तो यूरोपियम और दूसरा इटर्बियम। इनमें +2 क्यों आता है? बिकॉज ऑफ F7 एंड F14, बट दे हैव द टेंडेंसी टू बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट्स। और दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका +3 का स्टेबिलिटी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड होता है इसमें बिकॉज ऑफ F7 एंड F14 कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज गैडोलिनियम +3 एंड ल्यूटीशियम +3। ठीक है, सो दिस वाज ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ लैंथेनाइड्स। चले आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बाद अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से मिलेगी। केमिकल रिएक्टिविटी कैन बी डिटरमाइंड बाय इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, E0 M+3 एक्वस लैंथेनॉइड्स के लिए इट रेंजेस बिटवीन 2.2 टू 2.4, यानी इनका जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है दैट रेंजेस फ्रॉम 2.2 टू 2.4। ठीक है, अगर हम इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को कंपेयर करते हैं एस ब्लॉक के साथ और डी ब्लॉक के साथ, एस ब्लॉक के कंपैरिजन में ये कम है क्योंकि लगभग एस ब्लॉक का 2.7 से ज्यादा होता है और डी ब्लॉक का लगभग 1 to 2 के बीच में होता है। तो ये एस ब्लॉक से कम है लेकिन डी ब्लॉक से ज्यादा है। तो इसका मतलब है लैंथेनॉइड्स की जो रिएक्टिविटी है, लैंथेनॉइड्स की जो रिएक्टिविटी है, दैट रिएक्टिविटी इज बिटवीन एस ब्लॉक एंड डी ब्लॉक। दे आर मोर रिएक्टिव दैन डी ब्लॉक या ट्रांजिशन मेटल्स बट आर लेस रिएक्टिव दैन एस ब्लॉक एलिमेंट्स। सो इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेसिस पे हम ये कहेंगे कि लैंथेनॉइड्स आर मोर रिएक्टिव, lengthenoids are more reactive than transition metals but less reactive than S block metals। S ब्लॉक मेटल्स ट्रांजिशन मेटल से ज्यादा रिएक्टिव, S ब्लॉक मेटल से कम रिएक्टिव। ठीक है, एक मेटल ट्रांजिशन मेटल्स में ऐसा है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल थोड़ा सा कम आता है, दैट इज यूरोपियम। E0 यूरोपियम +3 दैट इज ओनली 2.0 volts, नॉट इन दिस रेंज। रीजन है यूरोपियम का जो +2 है वो ज्यादा स्टेबल होता है हल्का सा, इस वजह से यहां पे +2 टू +3 जब आप जाओगे आयनाइजेशन एनर्जी थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, इस वजह से SOP थोड़ा ड्रॉप होके 2.0 पे आता, बट स्टिल इट इज ग्रेटर दैन ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, तो ये अबाउट केमिकल रिएक्टिविटी। ठीक है, and remember that all the compounds are formed except few compounds, all the compounds are formed in +3 oxidation state। आगे बढ़ते हैं, next point, ionization energies। As far as ionization energy of lanthanoids is considered, ठीक है, इनकी जो फर्स्ट और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है दैट्स कंपेरेबल विथ कैल्शियम, दैट इज IE फर्स्ट एंड IE सेकंड। ठीक है, इट्स ऑफ द ऑर्डर 600 किलो जूल्स पर मोल एंड IE सेकंड ऑफ द ऑर्डर 1200 किलो जूल्स पर मोल। दिस इज कंपेरेबल विथ कैल्शियम। रीजन इज दैट क्योंकि S इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, लेकिन जो थर्ड आयनाइजेशन का वेरिएशन है वो डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन पे। जिन एलिमेंट्स में +3 यानी M+2 टू M+3, जिन एलिमेंट्स में ये वाला एक्स्ट्रा स्टेबल होगा, ठीक है, उनमें आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू कम होगा, और जिनमें ये स्टेबल होगा हल्का सा, उनमें आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू ज्यादा होगा। इसकी कोई नॉर्मल ट्रेंड नहीं है। जैसे दो एग्जांपल्स में दिखाता हूं, लैंथेनम +2 टू गैडोलिनियम +2 टू गैडोलिनियम +3 जब आप जाओगे, ठीक है, तो यहां पे जो कॉन्फ़िगरेशन है ये कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 4F7 5D 1 to 4F7।
ठीक है, मोर लेस स्टेबल टू मोर स्टेबल, ये मोर स्टेबल बन रहा है, तो यहां पे आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू कम होगा। 4f7 ज्यादा स्टेबल बन रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू कम होगा। लेकिन जब आप यूरोपियम +2 टू यूरोपियम +3 जाओगे, यह 4f7 ये बनेगा 4f6। तो इस वजह से क्या होगा, यू आर गोइंग फ्रॉम मोर स्टेबल टू लेस स्टेबल, यहां पे आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू ज्यादा होगा। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड लगभग सभी एलिमेंट्स में ऑफ द ऑर्डर 600 किलो जूल्स पर मोल एंड 1200 किलो जूल्स पर मोल, कंपेरेबल विद द कैल्शियम। लेकिन थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी में वेरिएशंस आएगी, और वेरिएशंस किस वजह से, बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी एसोसिएटेड विद +2 और +3। दोनों एग्जांपल्स मैंने दिखाए, यहां पे लेस स्टेबल टू मोर स्टेबल आप जा रहे हो, आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू कम होगा। यहां पे मोर स्टेबल टू लेस स्टेबल जा रहे हो, आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू हल्का सा ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए आयोनाइजेशन एनर्जी के बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हम आएंगे, दैट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अगर आप इनको कंपेयर करोगे ट्रांजिशन मेटल्स के साथ, ट्रांजिशन मेटल्स के कंपैरिजन में इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत कम होते हैं। रीजन इज दैट कि इनमें 4f इलेक्ट्रॉन्स मेटेलिक बॉन्डिंग में नहीं आते, दे आर डीपली पेनिट्रेटेड, इनका मेटेलिक बॉन्डिंग में आना मुश्किल हो जाता है। इस वजह से लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होगी फॉर मेटेलिक बॉन्डिंग, इस वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स ट्रांजिशन मेटल्स के कंपैरिजन में कम होता है। ठीक है, ये पहली बात है। सो फर्स्ट पॉइंट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में, मेल्टिंग एंड boiling point. Point number 1, they have less melting and boiling point in comparison to transition metals. क्यों कम है? क्योंकि इसमें 4f इलेक्ट्रॉन्स मेटेलिक बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं, जिस वजह से मेटेलिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ कम होगी। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स कम होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स के साथ। ठीक है, दूसरा पॉइंट, सारे के सारे लैंथेनॉइड्स मेल्ट होते हैं इन अ रेंज ऑफ 1000 to 1200 kelvins. All the lanthanoids melt in a range of 1000 to 1200 kelvins. Remember that, if you remember, हमने कहा था कि ट्रांजिशन मेटल्स में 10 या 20 ऐसे जिनका 1000 से ज्यादा है, और 10 उसमें है जिनका 2000 से ज्यादा, और 3 ऐसा है जिनका 3000 से ज्यादा। तो यहाँ पे उतने मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स नहीं है बिकॉज ऑफ वीकर मेटालिक बॉन्डिंग। लेकिन इनमें एक एलिमेंट है जिसका इस रेंज से बाहर है, और वो इंपॉर्टेंट है। दैट एलिमेंट इज समैरियम। Samarium, I have written there, this is samarium there. ठीक है, samarium is the hardest lanthanoid, और इसका जो melting point है that is deviated from this range 1623 kelvins maximum melting point, and इसका जो melting point है that is 1623 सबसे ज्यादा है, और ये hardest lanthanoid भी है। ठीक है, these are the points regarding melting and boiling points of lanthanoids. Next point, as far as lanthanoids are considered, all the lanthanoids are non-radioactive. इनमें कोई भी radioactive नहीं है except one element, and that element is promethium, ये वाला। ठीक है, so next point ये है, all lanthanoids are non-radioactive except promethium। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नहीं पढ़ना, इट्स प्रोमीथियम। ठीक है, तो ये एक ऐसा लैंथेनॉइड है दैट इज रेडियोएक्टिव, बाकी सारे के सारे नॉन रेडियोएक्टिव। Next point, like transition metals, lanthanoids also have the tendency to show paramagnetism because of the presence of one or more unpaired electrons. ठीक है, तो इनमें भी पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर आ सकता है।
paramagnetic character due to the presence of one or more unpaired electrons. Presence of one or more unpaired electrons. और मैग्नेटिक मोमेंट किस फॉर्मूला से निकालते हैं आप? स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2 बोहर मैग्नेटॉन्स वेयर n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इस पे ऑलरेडी हम क्वेश्चंस कर चुके हैं डी ब्लॉक में, खाली यहाँ पे पॉइंट हमने लिया, जस्ट वी शुड नो द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड यू कैन डिटरमाइन द पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। ठीक है, सो ऑल द लैंथेनाइड्स आर नॉन रेडियो एक्टिव एक्सेप्ट प्रोमीथियम एंड दे हैव द पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। वो आप निकाल सकते हैं। Another character that is related with transition metals is color formation. ठीक है, like transition metal compounds, lanthanides के भी compounds है जिनमें कलर आ सकता है। ठीक है, वहां पे कलर के रीजंस हमने कंप्लीट डिस्कस किए थे, कौन कौन से रीजंस रेस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे जो कलर का रीजन मेनली है दैट इज FF ट्रांजिशन, दैट वहां पे भी मैंने डिस्कस किया था। सो यहाँ पे कंपाउंड्स जो लैंथेनाइड्स के होते हैं, कंपाउंड्स ऑफ लैंथेनॉइड्स और कलर्ड ड्यू टू मेन रीजन है FF ट्रांजिशंस। ठीक है, FF ट्रांजिशंस जहां पे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा फ्रॉम लोअर एनर्जी f ऑर्बिटल टू हायर एनर्जी f ऑर्बिटल। पहले स्प्लिटिंग होगा, फिर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑफ f ऑर्बिटल टू हायर एनर्जी ऑफ f ऑर्बिटल, जिसकी वजह से कलर प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, और ये वाली ट्रांजिशन अगेन लेपोर्टी फॉरबिडन होगा। ठीक है, नीचे भी f ऑर्बिटल, ऊपर भी f ऑर्बिटल। ठीक, तो इस वजह से लेपोर्टी फॉरबिडन होगा। और दूसरी बात जो इसमें स्पेसिफिक है, FN कॉन्फ़िगरेशन और F14-N कॉन्फ़िगरेशन, इन दो कॉन्फ़िगरेशंस का जो कलर है वो सेम होता है। मतलब F1 और F13, 14-1 13, F1 F13, F2 F12, F3 F11, F4 F10। ठीक है, इनका कलर सेम होता है। रीजन क्या है? ड्यू टू equal number of unpaired electrons, due to equal number of unpaired electrons। F1 में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, F13 में भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, F2 में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, F12 में भी दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिसकी वजह से इनमें कलर सेम आता है। दिस इज peculiar about compounds of lanthanoids। सो कलर का रीजन FF ट्रांजिशन मेनली, ठीक, चार्ज ट्रांसफर भी हो सकता है, ठीक है, पोलराइजेशन भी हो सकता है, बट मेन रीजन इज FF ट्रांजिशन। और दूसरा FN और F14-N का जो कलर है दैट सेम। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो हमें इसमें डिस्कस करना है दैट इज अबाउट कंपाउंड्स और केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ लैंथेनॉइड्स। ऑलरेडी हमने कहा कि लैंथेनॉइड्स का जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3। ठीक है, नियरली ऑल द कंपाउंड्स ऑफ लैंथेनाइड्स आर फॉर्म्ड इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक, तो लैंथेनाइड्स डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करके जो कंपाउंड्स बनाते हैं वो कंपाउंड्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आते हैं। ठीक है, तो हम कुछ इस तरीके से लिखने वाले हैं। अगर मैं लैंथेनाइड्स +3 लेता हूं या लैंथेनाइड्स +3 में ही कंपाउंड्स बनाते हैं, तो कुछ कंपाउंड्स यहां पे मैं लिखने वाला हूं क्योंकि ऑल द कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड इन +3। सबसे पहले अगर ऑक्सीजन के साथ लैंथेनाइड्स रिएक्ट करेंगे तो +3 में कंपाउंड बनेगा ऑक्साइड, तो फॉर्मूला होगा Ln2O3। ठीक है, सीरियम फॉर्म CeO2 ऑलरेडी डिस्कस्ड, क्योंकि सीरियम का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी होता है। ठीक, एंड यूटर्बियम डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन ड्यू टू द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस। ये इनर्ट बनता है, उसके सरफेस के ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ ऑक्साइड बनती है, तो उस वजह से यूटर्बियम फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है। सो सारे लैंथेनाइड्स ऑक्साइड्स की फॉर्मूला होगी Ln2O3। ठीक, जहां पे Ln रिप्रेजेंट करेगा लैंथेनाइड्स को। सेकंड, अगर हैलाइड्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो यू विल गेट द फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड्स ऑफ द जनरल फॉर्मूला Lnx3, लैंथेनाइड हैलाइड्स। अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोक्साइड्स बनाएंगे, और हाइड्रोक्साइड्स की जो जनरल फॉर्मूला है दैट इज LnOH होल थ्राइस।
लैंथेनाइड हाइड्रोक्साइड्स। अगर सल्फर के साथ रिएक्ट करेंगे तो लैंथेनाइड सल्फाइड्स बनाएंगे Ln2S3। नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे, नाइट्रोजन गैस के साथ बहुत कम मेटल्स रिएक्ट करते हैं और उनमें लैंथेनाइड्स भी आते हैं बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग पोलराइजिंग पावर। तो जो कंपाउंड बनेगा लैंथेनाइड नाइट्राइड वो होगा LNN, जहां पे ये भी +3 में ये भी -3 में, लैंथेनाइड नाइट्राइड। ठीक है, उसके बाद जब ये डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे दे हैव द टेंडेंसी टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। जैसे lanthanide plus HCl, if I write the reaction there, lanthanide plus HCl, you will get formation of lanthanide chloride and Cl3 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस हाइड्रोजन गैस। क्योंकि इनका जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया, दैट स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज 2.2 to 2.4, बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, हाइड्रोजन गैस आराम से निकल सकता है। तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं ऑन रिएक्टिंग विथ डाइल्यूट एसिड्स। ठीक है, तो ये कुछ मेन रिएक्शंस है लैंथेनाइड्स के, एंड ऑल द कंपाउंड्स आर फॉर्मड इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्साइड्स, हैलाइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, सल्फाइड्स, नाइट्राइड्स, and they have the tendency to produce hydrogen gas from dilute acids. So all the compounds are in +3 oxidation state because the most stable and the most common oxidation state of lanthanides is +3. ठीक है, this is all about the general characteristics of lanthanides.